وہ شدید اضطراب کے عالم میں ٹہلتا رہا، پھر بیڈ میں سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھ گیا۔ وہ تو اپنے بھائی بہن سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا تھا۔ اسے ہر لمحے اپنے بھائی کی کمی محسوس ہوتی تھی، لیکن وہ تکلیف اپنے تک ہی رکھتا تھا۔ اس کے بابا کیسے کہہ سکتے تھے وہ اپنے بھائی سے محبت نہیں کرتا؟ یہ بات اسے تکلیف پہنچا رہی تھی۔ بھائی یار، آپ اتنا اچھا نشانہ کیسے لگا لیتے ہیں؟ مہران اور زہران خان جنگل میں شکار کے لیے آئے ہوئے تھے۔ مہران خان کا نشانہ تو بہت اچھا تھا، وہ زہران خان کا چک جا رہا تھا۔ میں نے اپنے شہزادے سے سیکھا ہے، وہ مسکراتا ہوا بولا۔ بنا لے مذاق، اپنا بھی وقت آئے گا۔ وہ مصنوعی خفگی سے بولا۔ سیکھ جاؤ گے تم بھی، اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ میں ہوں نا۔ وہ محبت سے بال بکھیرا۔ بالکل، ہر موڑ پر مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ زہران بھی بچوں کی طرح بولا۔ اب ہر موڑ پہ میں تو نہیں ہوں گا نا، اکیلے کی بھی تو عادت ڈالنی ہوگی نا میری جان۔ کوئی نہیں، آپ کی بیوی بھی آ جائے، تب بھی آپ میرے زیادہ ہیں۔ ہاں ہاں، مہران خان کہکا لگایا۔ آہ بھائی، کیوں چھوڑ گئے آپ؟ بھائی کی یاد میں اس کی آنکھیں نم ہوئیں۔ دروازہ ناک ہونے پر اس کے ماتھے پہ بل پڑے۔ ابھی تو وہ نیچے سے منع کر کے آیا تھا کہ اسے کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ آئیے، وہ بغیر سر اٹھائے بولا۔ زمل اجازت ملنے پر چلتے ہوئے اس کے قریب آئی۔ چائے، وہ ہلکی آواز میں بولی۔ یہ لفظ سن کر زہران خان کا غصہ سوا نیزے میں پہنچا۔ ابھی کیا میں نیچے مذاق کر کے آیا تھا؟ وہ غصے سے اٹھا، چائے کی پیالی گرا چکا تھا۔ زمل سہم کر پیچھے ہوئی، آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ کیا یہ بھی حویلی کے لوگوں کے جیسے ہیں؟ دل جو اس کے آنے پر تھوڑا مطمئن ہوا تھا، اب اداس ہو چکا تھا۔ منع کر کے آیا تھا نا میں پھر، وہ جو غصے سے کہہ رہا تھا۔ اس کے خوفزدہ چہرے کو دیکھ کر آواز خود بخود آہستہ ہوتی چلی گئی۔ وہ مجھے خان بی بی نے بھیجا تھا، وہ کانپتے لہجے میں بولے۔ مورے نے پہننے کو کپڑے نہیں دیے؟ وہ اس کا تفصیلی جائزہ لیتے بولا۔ ایک دیا تھا گل مینا کا۔ اس کے غیر متوقع سوال پر زمر سر اٹھا کر حیرانی سے اسے دیکھی، پھر ایک نظر اپنے وجود کو دیکھتے شرمندگی سے جواب دی۔ میرا مقصد شرمندہ کرنا نہیں تھا، جا سکتی ہیں آپ۔ اس کے چہرے پہ شرمندگی کے آثار دیکھتے وہ نرمی سے بولا۔ زمل بھی کچھ کہے بغیر جلدی سے اس کے کمرے سے نکل گئی۔ آہ تو مورے، آپ مجھ سے اسے اس طرح ڈانٹ سنوانا چاہتی ہیں؟ وہ افسوس سے سوچتا مشل کے کمرے کی طرف بڑھا۔ وہ مشل کے کمرے میں ناک کرتا اندر آیا۔ وہ جو بیڈ پہ پھیلی اپنی کتابیں سمیٹ رہی تھی، تیزی سے بھاگتے اس کے گلے لگی۔ آج اپنے بھائی کی ہی وجہ سے تو وہ شہر کی یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ بھائی، آپ کب آئے؟ وہ سر اٹھاتے بولی، آنکھوں میں ناراضگی صاف جھلک رہی تھی۔ بس ابھی ہی آیا تھا گڑیا، وہ اس کے ماتھے پہ پیار کیا۔ اتنے دنوں سے آپ حویلی نہیں آئے، وہ نہ کوئی کال کیے۔ آپ کو پتہ ہے کتنا مس کر رہی تھی میں، وہ خفگی سے بولی۔ بھائی کی جان، کال نہ کرنے پہ سوری، اور حویلی نہ آنا میری مجبوری تھی، وہ محبت بھرے لہجے میں بولا۔ مشل مسکراتے ہوئے سر ہلا دی۔ اچھا یہ بتاؤ، وہ لڑکی، وہ اس کا نام یاد کرنے کو رکا۔ زمل، مشی سمجھتے ہوئے بولی۔ ہاں وہی، اسے کوئی ڈریس نہیں دیا؟ بھائی اتنی مشکلوں سے تو مورے سے کہا تو وہ گل مینا کا ایک ڈریس دے دی، وہ افسردگی سے بولی۔ چلو کوئی بات نہیں، ابھی میں کام سے جا رہا ہوں، کل اپنی گڑیا کو آؤٹنگ پہ لے کر جاؤں گا۔ وہ اسے پیار کرتا کمرے سے نکل گیا۔ مشل اپنے بھائی کی محبت پہ مسکرا دی۔ زہران کہاں جا رہے ہو؟ کھانا بس تیار ہے۔ زہران کہاں جا رہے ہو؟ کھانا بس تیار ہونے ہی والا ہے، فضیلہ بیگم نے اسے باہر کی جانب جاتا دیکھ کر پکاری۔ مورے آپ لوگ کھا لیجئے گا، میں دیر سے آؤں گا، وہ کہتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ صرف اپنی من مانی کرتا ہے یہ لڑکا، وہ سر جھٹکے۔ رات 11 بجے اس کی واپسی ہوئی تھی۔ خاموشی نے اس کا استقبال کیا۔ وہ سیڑھیاں چڑھتے اپنے کمرے میں گیا اور بیڈ پہ سامان رکھ کر مشل کے کمرے میں گیا۔ زمل کی بابت پوچھا، سٹور روم کا سن کر وہ لب بھینچ گیا۔ اب وہ پھر سے سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ وہ سٹور روم کی جانب جاتی پتلی راہداری پہ چلنے لگا۔ دھیمی چال چلتا وہ سیدھا سا دروازہ کھٹکھٹایا۔
कौन? वो अभी 11:30 बजे ही सारे काम खत्म करके आकर लेटी थी। डरते हुए पूछा। जहरान खान, इसकी भारी गंभीर आवाज़ आई। वो डरते डरते उठकर दरवाजे पे लगी चुटकी नीचे की। जी, नज़रें झुकाए ही दरियाफ्त किया। मेरे साथ आइए, वो अपने मखसूस अंदाज में बोला। कहाँ? आंखों में खौफ वाज़िह थे। देखे मेरे साथ रूम में चले। इसे समझ नहीं आ रहा था वो कैसे इसे समझाए। इसकी आंखों में मौजूद खौफ देखते इसे अपने आप से शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, वो कपकपाते लहजे में कहती एक कदम स्टोर के दरवाजे से बाहर निकली। तभी किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। जहरान ने फौरन इसे अपनी तरफ खींचा और दरवाज़ा बंद किया। इस अफ्ताद के लिए वो तैयार न थी। इसके कुशादा सीने से आ लगे। जमल की दिल की धड़कन मुंतशिर हुई तो दूसरी तरफ भी हाल मुख्तलिफ ना था। जमल जल्दी से इससे अलग होते लब काटने लगे। कोई आ रहा था और फिलहाल मैं नहीं चाहता हम दोनों को साथ देखकर इस वक्त कोई तमाशा हो। वो इसके कुछ शर्मिंदगी से कुछ हया से होते सुर्खी माइल चेहरे को देखकर बोला, प्लीज़ मैं नहीं जाऊंगी। इसकी आंखें खौफ से फैली हुई थी। जहरान कुछ ना बोला। कुछ लम्हे खामोशी की नज़र हुए। फिर थोड़ी देर बाद जहरान दरवाज़ा खोलते देखने लगा। जब यकीन हो गया कोई नहीं है तो इसका हाथ मजबूती से पकड़ता बाहर की तरफ जाने लगा। कहाँ ले जा रहे हैं? छोड़ें मुझे, प्लीज़ छोड़ दें, वो रोते हुए तेज़ आवाज़ में बोलने लगी। वो तेज़ी से एक कोने में आया और इसे दीवार से लगाया। क्यों इतना शोर कर रही हैं? अपने साथ साथ क्या मुझे भी इस हवेली से निकलवाना है? एक हाथ दीवार पे रखते दूसरे हाथ इसके मुंह पे रखते वो संजीदगी से पूछा। वो इस वक्त इसके हिसार में थी। खामोशी से मेरे साथ चलें। आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आए। वो समझ गया था कि नरमी से कभी इसकी बात नहीं मानेगी। जब भी सख्ती से गोया हुआ। इसके इतने करीब आने पे जमल की पलकें लरजीं। वो रोते हुए खामोशी से सर हिला दी। लेकिन जहरान को इस पे अब भी भरोसा न था। जब भी एक हाथ इसके मुंह पे रखकर अपने कमरे की जानब बढ़ा। ऐसा नहीं था कि वो इसे अपने कमरे में ले जाने से अपने माँ बाप से डर रहा था, बल्कि बस इस वक्त वो बहुत थका हुआ था और अपने माँ बाप से किसी बहस के लिए तैयार न था। कमरे में लाकर इसके मुंह से हाथ उठाया और दरवाज़ा लॉक किया। पीछे मुड़कर देखा तो वो गहरी सांसें ले रही थी। मुंह भी लाल हो चुका था। गलती मेरी नहीं है। अगर आप खामोशी से आ जाती तो मुझे ऐसे लाना नहीं पड़ता। वो इसके सुर्ख होते चेहरे को देखकर कंधे उचकाया। आप क्यों लाए हैं मुझे यहाँ? इसके दिल में फहद खान का डर बैठ चुका था। वो जहरान खान के बारे में दिल इस तरह की बात मानने से इनकारी था, लेकिन फिर भी इस वक्त कमरे पे लाने में वो खौफसदा थी। एक तो उसे अजीब से स्टोर रूम से निकालकर अपने खूबसूरत से कमरे में ले आया हूँ और आप शुक्रिया अदा करने के बजाय सवाल कर रही हैं। उसको खौफसदा देखकर वो तबीयत के बरखलाफ जाते सरसरी सा इस पे नज़र डालता हल्के फुल्के लहजे में बोला, वो बीबी खान गुस्सा करेंगे। उधर से थोड़ा खौफ कम हुआ तो नई फिक्र लाहक हुई। उन्हें मैं देख लूँगा। वो मसरूफ से अंदाज में बाईं कलाई से घड़ी उतारता ड्रेसिंग टेबल पे रखता हुआ बोला, ये आपके लिए कुछ चीज़ें लाया हूँ, देख लें। वो वार्डरोब से इजी सा ड्रेस निकाल कर मुड़ा तो इसे नज़रें नीचे किए उंगलियां चटखाते देखकर बोला, ये चीज़ें खुद चलकर नहीं आएंगी, आपको चलकर आना होगा। वो इसके अंदाज पे जिच होता बोला। एक तो वो वैसी ही लड़कियों से कम ही बात करता था और इन कम में भी वो सिर्फ माहम से बात करता था। अब इस लड़की से तो बात करना ही तो था, आखिर को बीवी थी। जमल इसकी बात पे शर्मिंदा सी सर हिलाते बेड के पास आई और जहरान खान कपड़े लिए बाथरूम में बंद हुआ। जमल बैग्स खोलकर देखने लगी तो इसमें डिज़ाइनर सूट और दीगर चीज़ें देखकर आंखें नम हुईं। इन 10 दिनों में तो किसी ने ना कुछ दिया और ना ही पूछा। वो ये शख्स घंटे पहले ही आया था और इसकी सारी चीज़ें भी ले आया। वो मैं चेंज कर लूँ। इसके निकलने पर वो सोचों से बाहर आई। गीले बाल माथे पे बिखरे थे। वो इजी से कमीज शलवार में बला का वजी लग रहा था। बिल्कुल, आप इस कमरे की हर चीज़ बिला इजाज़त इस्तेमाल कर सकती हैं। संजीदे से लहजे में बना इसे देख के वो ड्रेसिंग के आगे खड़ा होता बोला। जमल जल्दी से पहले बैग से जो सूट निकाला वो लेकर वॉशरूम में गई।
थोड़ी देर बाद निकली तो जहरान को बेड पे बैठा लैपटॉप यूज़ करता पाया। वो थोड़ी देर खड़े रहने के बाद झिझकते हुए ड्रेसिंग के पास आई और अपने सर पे रखा ग्रीन रंग का दुपट्टा कांधों पे करते अपने गीले हल्के ब्राउन बालों में ब्रश करने लगी। जहरान खान की गैर राती निगाह जब उठी तो ठहर सी गई। इसके मुंतखब करता ग्रीन और रेड कलर के कंट्रास्ट का सूट इस पे जच रहा था। वो जो चीज़ इसे ठहरने पे मजबूर की थी वो थे इसके हल्के रंग के ब्राउन बाल। इस रंग के बाल तो बहुत कम होते थे और इसे हवेली की एक शख्सियत के बालों का रंग याद आया था जो हूबहू इसी रंग के थे। जमल नज़रों की तपश महसूस करते मुड़ी तो जहरान होश में आता जल्दी से निगाहें लैपटॉप की स्क्रीन पे मरकूज किया। आप यहाँ बेड पर सो जाएं, मैं सोफे पर सो जाता हूँ। जैसे वो ड्रेसिंग टेबल से हटी तो जहरान बोला, मैं सोफे पर सो जाती हूँ। सोफ़ा अच्छा खासा बड़ा था जिसमें जमल तो पूरी तरह आ सकती थी, लेकिन दराज कामत जहरान इसमें मिसफिट होता। वार्डरोब के नीचे पोर्शन में एक कंफर्टर है, वो ले लें। वो इसकी बात पे इतराज़ किए बिना बोला। जमल ब्लैंकेट लेकर सोफे पर आ गई। अपने ऊपर अच्छे से कंफर्टर लेते वो लेट गई। लेटते ही इसे सुकून सा मिला था। इतने दिनों से ज़मीन पे सोकर इसकी पीठ अकड़ गई थी। समल ने गौर किया था कि जहरान खान इस पे सिर्फ सरसरी सा ही नज़र डालता था। वो अपने हर अंदाज से हवेली के मर्दों से मुख्तलिफ होने का सबूत दे रहा था। मैंने हवेली के मर्दों के बारे में सुना था, वो जालिम होते हैं, अच्छी जहनीत के नहीं होते, और इसका दोरू फाहद खान और मक्षम खान की सूरत में देख भी लिया था। लेकिन आप तो बिल्कुल मुख्तलिफ लग रहे हैं। आप एक साहिर हैं जो अपनी बातों अपने रवैये से शहर में जकड़ रहे हैं। वो नम आंखों से शाम से अब तक के रवैये के बारे में सोच रही थी और इन सोचों में आज पिछली रातों के मुकाबले जल्द ही नींद की वादियों में चली गई। सुबह मामूल के मुताबिक फजर पे इसकी आंख खुली तो जहरान खान को नमाज अदा करते पाया। इसे नमाज अदा करता देखकर एक खूबसूरत सा एहसास जागा। ये शख्स कितना मुख्तलिफ है, इसके दिल ने बेख्तियार सोचा। फिर इसी की दी हुई इतमादी थी कि वो अब बिना झिझके उठकर वाशरूम में वजू बनाने की गरज से गई। निकली तो ग्रीन कलर के दुपट्टे में नमाज के स्टाइल में लिपटा हुआ था। वो जाए नमाज की तलाश में नजरें इर्द गिर्द घुमा रही थी। जहरान खान जो तस्बीहात पढ़ रहा था इसे देखते हुए कहा, साइड टेबल के सेकंड ड्रॉर में एक और जाए नमाज है। उसको बताते वो दोबारा से तस्बीहात पढ़ने लगा। जमल दुआ मांगकर जहरान खान की जानब देखी जो खुशहाल आवाज़ में सूरह रहमान की तिलावत कर रहा था। जमल ट्रांस की कैफियत में वही जाए नमाज पे बैठी तिलावत सुन रही थी। इतनी पुरकशिश आवाज़ पे वो तिलावत कर रहा था। जहरान खान नज़रों की तपश महसूस कर चुका था, लेकिन फिर भी इसकी पूरी तवज्जो तिलावत में थी। तिलावत करके वो कुरान शरीफ को एक गिलाफ में डालकर रख कर पलटा तो वो तब भी इसे ही देख रही थी। क्या हुआ? वो बेड पे बैठता पूछा। आप बहुत अच्छी तिलावत कर रहे थे, वो ट्रांस की कैफियत में बोली। जहरान ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ तारीफ कबूल की। आप रोज़ तिलावत करते हैं? वो पूछे बिना न रह सके। मैं हर सुबह सूरह रहमान की तिलावत करता हूँ। अगर लहजे में सख्ती ना थी तो कोई नरम मीठा लहजा भी ना था। वो संजीदा शख्सियत का मालिक संजीदगी से ही बात करता था। हवेली में तो कोई आप जैसा नहीं। इससे क्या हुआ? वो ये सवाल पूछ बैठे। जहरान खान इसके सवाल का जवाब दिए बगैर ड्रेसिंग के आगे खड़ा हो गया। समल को एहसास हुआ वो कुछ ज्यादा पूछ गए थे। अभी आए इसे दिन ही कितने हुए थे और फिर घड़ी में नजर जाते ही वो डर कर घबराहट से फट से उठी और अपने दरवाजे की तरफ बढ़ी। लेकिन हाय रे किस्मत, वो बैठ के आगे पीछे रख से इसका पाँव फंसा। इससे पहले वो नीचे गिरती इसकी बदहवासी मुलाहजा करते जहरान ने इसे गिरने से बचाया। इतनी तेजी से कहाँ जा रही थी? इसको पकड़कर सीधा करते वो संजीदगी से इसकी आंखों में देखता पूछा। वो मुझे 5:30 बजे किचन पहुंचना होता है और अब 6 बज गए हैं। इसके चेहरे पे खौफ देखते वो गहरी सांस लिया। अभी तो आप जाएं और कुछ दिन तक तो आपको ये काम करना होगा। आहिस्ता आहिस्ता ही सब कुछ ठीक कर सकूंगा। इसकी बात पे वो सर हिलाते नीचे चली गई। अभी सिर्फ इसे नीचे पहुंचने की जल्दी थी।
वक्त देखा है तूने? रेशमा इसको देखते ही गुस्से से बोली। और ये बता तू थी कहाँ? मैं स्टोर रूम में जब गई तो वहाँ तो ना थी। वो इसको जांचती नजरों से देखने लगी। मैं इसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। और ये कपड़ा कहाँ से चुराया है? जल्दी बता या बीबी खान को बताओ। वो इसको रेड कलर के कंट्रास्ट के सूट में ढीली सी नफीस सी चोटी बनाए पिछले दिनों के मुकाबले में तैयार देखकर वो गुस्से से बोली। इसे जहाँ होना चाहिए था ये वही थी। वो दूसरी बात ये, सूट मैंने लाकर दिया। तुम्हें कोई इतराज? वो आंखों में सख्ती लिए पूछा। अपने पीछे से आती जहरान की आवाज़ पे से लगा वो तपती सहरा से छाँव में आ गई है। इसकी संजीदा तबीयत से तो वो पहले ही मुलाजम इससे दूर रहते थे। अब इसे बोलता देखकर रेशमा का सर फौरन नफ़ी में हिला। अब संभल से किसी को बदतमीजी न करता देखूं। वो सुनो, सारे काम तुम लोग खुद ही करोगे, मुझे सिर्फ हेल्प करवाएंगे। और मोरे तक ये बात पहुंची तो इस दिन इसका आखिरी दिन होगा इस हवेली में। कहते ही वो वहां से चला गया। संभल ने नम आंखों से इस मेहरबान शख्स की पुश्त को देखा। इसके लिए वो कितनी आसानी करता चला जा रहा था।